So we're live now. Okay, not a issue. Not a issue. Yes, sir. Yeah, So we are live, sir. And Harmeet, can we begin? Yes, sir. So, a very warm welcome to all our viewers to the fourth edition of the Cedrus Knowledge Series, an initiative wherein we have one expert each month speaking on a variety of topics ranging from investing to well being. We at Cedrus Wealth take pride not only in providing financial advice to our investors, but also help them in their personal finances and with their overall well being. Our founder, Mr. Nilesh Bajaj, is an avid fitness freak and diligently upholds the belief that health is the real wealth. We at Cedrus believe that wealth can be earned and needs to be retained when we retire, but health has to be earned for life, and there is no retirement date to it. For our fourth edition, we are in equal parts thrilled and honored to have Mr. Krishna Prakash, an IPS officer in the Maharashtra cadre from the 1998 batch of the Indian Civil Services. He has served at various posts in Maharashtra and was most recently posted as the Commissioner of Police of the Pimpri Chinchwad Police Commissionerate. Prior to joining the Police Commissionerate in Pimpri Chinchwad, he was serving as the Special IGP dealing with VIP security, wherein his job was to protect all the protectees of Maharashtra and the protectees visiting Maharashtra from other states. He also had a dual responsibility wherein he was also the Special IGP for prevention of crimes against women and children in the state. Apart from an illustrious career in civil services, he is most famous for his achievement of the twin gold feathers in his cap that are marked for victory in the two internationally recognized triathlon events. The first being the Ironman title, which he earned in 2017, and the second being the Ultraman title that he earned at the Ultraman World Championship in 2018. We are sure we will have a lot of takeaways from this session. Once again, a very warm welcome to all our viewers and our speaker. Jai Hind, sir. Jai I would Hind. now hand over to Mr. Nilesh Bajaj to take the conversation ahead. Jai Hind, sir. Jai Hind. And Jai Hind to all our viewers. Thank you, Harmeet, for a lovely introduction. A very good evening to all our viewers. And it's a pleasure to have you as our guest in this month's edition of Cedrus Knowledge Series. Um Apart from fitness, what and Sir's illustrious career, which Harmeet talked about, I there are some more interesting things which which I know about Sir. In fact, one is he's a very avid reader, and he's keenly interested in philosophy, and in fact he does very good shero shairi also. In fact. I'm sure the viewers will all be motivated, you have inspired so many of us, including me. In fact, once we wind up this session, for all our viewers, this is a moderated session wherein we will ask Sir a set of about six relevant questions, which are going to be relevant to fitness and his experience during the Ultraman, Ironman, and Raw. In the meantime, if any of our viewers have any questions, they can post the same in the comment box, and we can take them at the end of the session. So, sir, should we begin? Yeah, Okay. Sir, my first question, हमारा पहला सवाल है, and ये थोड़ा financial language के form में है, in fact. So there is a saying finance में कि good health is something we can is not something we can buy. Okay. However, it can be extremely valuable savings account. आप थोड़ा इस पे elaborate कर सकते हो, and how you have inspired so many people with your achievements, especially on the fitness side. जी मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इस बारे में बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों को पूरा करने का सर्वोत्तम साधन है. जस्ट think on this, that we toil and save and we rest. We are saving for whom? If we are toiling, we are saving,
then we should be healthy to enjoy that. First thing. Second thing, our body is the repository of all our indriyas, all our आत्मा और शरीरेंद्रिय सत्वात्मा संयोगो। इसका अर्थ ये होता है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व अर्थात मस्तिष्क और आत्मा का संयोग ही हमारा जीवन है, और इनका संयोग जब होता है तभी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं हमें आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घ आयुषी भव, अर्थात लंबी उम्र प्राप्त करो। लेकिन ये तभी जीवन चलायमान होता है जब हम अपने शरीर, आत्मा, मस्तिष्क और इंद्रियों का संयोग करके उसमें तालमेल बिठाकर, उसमें सामंजस्य बिठाकर रहते हैं। और इसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि इसी शरीर में इंद्रिय हैं, इसी शरीर में मस्तिष्क है और इसी शरीर में आत्मा है। आप किस घर में रहना पसंद करते हो? जो सेबिली मेंटेन्ड है, जो अनहाइजेनिक है, जो जिसमें कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं है, क्लटर्ड है, आप उस घर में रहना पसंद करोगे जो घर व्यवस्थित है, बहुत वेल केप्ट है, साफ सुथरा है, हाइजेनिक है। तो आपके शरीर का भी स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है, और तभी ये सारी चीजों का सहयोग होगा और तभी आपका जीवन चलायमान होगा। और बकासुर के कथा में आप लोग जानते हैं कि जब पंच पांडव को प्यास लगी और वो सरोवर के तट पर गए, तो एक एक करके पानी लेने के लिए सरोवर पर एक एक पांडव गए, और सभी से बकासुर ने, मतलब असुर ने, बगुले के रूप में असुर ने प्रश्न किए। कई प्रश्न थे, उसमें से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वो ये था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। और सभी पांडवों ने गलत गलत उत्तर दिया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और जब हम मरते हैं तो ऐसे मरते हैं जैसे जीवन जिया ही नहीं। इसलिए जीवन जीना है, अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। दिस इज वेरी वेरी important for the life actually, and इसलिए आपके सेविंग अकाउंट में जो कुछ है, मतलब कहते हैं ना कि आप अगर अपने हेल्थ को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो सेविंग अकाउंट में क्या है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। करती हुई थी तो उसने कहा था कि मेरा खजाना, के समय उसने कहा था मेरा खजाना लुटाते हुए चलना, और लास्ट में मुझे जब दफन करना, जब मेरा बोरियल करना, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि ये खजाना लेकर सिकंदर नहीं जा सका और उसके दोनों हाथ खाली थे मरते वक्त। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक जिंदा रहिए, पूरी शिद्दत से जिंदा रहिए, पूरी जोशो खरोश के साथ जिंदा रहिए, और ये तभी रह सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो, और तभी आपके शरीर, इंद्रिय और आत्मा का संयोग हो सकता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें, जो शैव हैं उनके लिए, या जो सत्य को मानते हैं उनके लिए, तो वो इस तरह से कह सकते हैं कि न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मतलब सच्चे चित्त का आनंद रूप ही शिव है, मतलब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सच्चे चित्त से काम कर रहे हैं क्या। आप जब टॉयल एंड सेव करते हैं, आप केवल अपना खजाना बढ़ाते हैं, तो वो उसी तरह का होता है जो गड़ा हुआ खजाना किसी और को मिल जाता है और वो भी उसके काम का नहीं रहता है। खजाना वो है कि आपका शरीर सुदृढ़ है, स्वस्थ है, आपका मन स्वस्थ है, आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, आपकी इंद्रिय स्वस्थ है, और आप उसके यूनिजन में
उसके एकात्म में काम कर रहे हो तो आप कभी भी अपने जीवन को सफल बना सकते हो। तो पैसा बनाना गलत नहीं है, लेकिन पैसा आपको आपकी स्वास्थ्य आपका दे नहीं सकता। आपका स्वास्थ्य आपको खुद कमाना पड़ेगा पैसे के अलावा। सर बहुत बढ़िया है, बड़ी आध्यात्मिक तरह से आपने सरल सरल हेल्थ का सही मायने में क्या महत्व रहता है ये आपने ना बताया इनफैक्ट। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी इससे काफी एक ये मिलेगा कि सिर्फ आप पैसा कमाओ और शरीर नहीं अगर है आपका, अगर आपका फिटनेस इज नॉट वेरी गुड, आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ द वेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी ग्रेट यूज इनफैक्ट, क्योंकि you will not be able to actually enjoy the money which you have earned when you don't have a good health. Yes, in fact, true that. so तो इससे ही एक आगे एक अभी दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जो एक्चुअली आप लाइक हरमीत ने जो इंट्रोड्यूस किया आपको कि आपने अल्ट्रा आयरन मैन 2018 में 34 मिनट और 34 घंटे और 21 मिनट में आपने कंप्लीट किया। और ये एक्चुअली आपने मिलिंद सोमन का रिकॉर्ड भी आपने सरपास किया था इसमें, और इंस्पाइट ऑफ सम मेजर इंजरी इनफैक्ट। तो एक तो आपको वो इंजरी के बारे में आपको बताना है कि ये इतनी इंजरी होने के बाद में भी ये कहाँ से आपको ये आया कि आपने वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट फॉर्म ऑफ इवेंट आपने कंप्लीट किया इनफैक्ट। ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि व्हाट इज एन अल्ट्रा आयरन मैन। अल्ट्रा आयरन मैन, सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच if there is some mistake just please let us know, but ultra ironman includes 10 kilometers of swimming in the ocean. Sir swam in the Pacific Ocean in Australia, right sir? Yes. Yeah. 421 kilometers of cross country cycling. True. And 84 kilometers of running. Yes. Okay. So this is how you have actually done a complete ultra marathon. So we want to, I'm sure everyone wants to hear your experiences about this. As a matter of fact, I never thought of doing Ultraman. I was, after completing my Ironman, which I targeted out of blue in the beginning of, in the March month of, I prepared very hard and I could do it because I had not learned the cycling in the cycle with cleats and all, and I had not learned the swimming of freestyle. So I picked up this in 3 months. I could participate in Vichy France, and I could bag the Ironman title. But after that, what? I was back home, and suddenly Dr. Anand Patil, who is an avid ultra runner and all, he requested me to participate in Deccan Cliffhanger. And without any preparation, I participated in Deccan Cliffhanger cycling, and en route somewhere in Medha Ghat, I met with an accident, and this was not a hit and run accident by someone else, but my own crew vehicle hit me from the behind somehow, and I managed to have 3 fractures: clavicle, scapula, and upper rib. I went to the Sancheti hospital itself, and from there I went to HN Reliance Hospital, and there to Anant Joshi Hospital. So I thought it is be all and end all of all the things which I have thought of doing. Actually, I had already registered myself for half Ironman. I thought I have become the first
Indian government servant to become Iron Man, including defense. So why not the half Iron Man? But when I met with an accident, and the Dubai half Ironman was in 2 months, because the accident took place in November. So it was not possible. Doctors told me that for 6 months you have not to do any physical activity, and you will be rehabilitated. You will be given physiotherapy and all after healing up, and then only you can participate. So even many doctors suggested me for operation and all, but I took second help right from Google Baba to Dr. Anand Joshi, and then I decided not to go for the operation, and instead thereof I went for natural healing with figure 8 bandage on. I ran full marathon with figure 8 bandage on within 2 months, though I was asked not to do physical activities for 6 months. And within 4 months, I started cycling, and the 5th month I started sea swimming practicing, and the 6th month I had to participate. I had to participate in Australia. So what happened? I थॉट कि जब ईश्वर मेरे धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींच रहा है, तो वो चाहता है कि मैं किसी दूर के लक्ष्य को भेदूं, और इसीलिए मैंने ये तय किया. When I was resting on the bed, I decided to do something bigger. And when I Google searched, I found that Ultraman Australia is one of the toughest triathlons, and for which the qualification is Ironman. I sent my request because you can participate, very much few people can participate, not more than 100 from the world. And so when I requested, they said, why we should believe that you can finish Ultraman. So I replied them that I have been born and brought up with the Aborigines of Jharkhand plateau, and the endurance is in my mud and blood. So they accepted it, and I went there, of course. And while cycling, I met with an accident again over there, because the brake failed, and my right toe fractured, and my left shin was badly hurt with the fence of some golf course. So actually, doctors were suggesting not to continue, but and not only that, I finished with that day's race of cycling, and it was touch and go finish, because with only before 5 minutes I could finish, because 1 hour I have lost during this accident and all, because my cycle was also in bad shape. And then the next day I had to run 84 kilometers, 84.3 kilometers, and that was in hilly terrain. So it was almost very difficult. It was paining very much. After 42 kilometers, I was thinking that it is not possible for me to continue. But then I took 2 Brufens, and again I ran with broken toe and badly hurt shin, and I could finish in a lot of races, and I could finish 40th. And that is what I could do. So मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको हमेशा शक्ति की मौलिक कल्पना करनी चाहिए. कृतिवास रामायण, जो बंगाल का रामायण है, बंगाल में ये लिखा गया है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बताया गया है कि कैसे शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं. ये हमारा शरीर, स्वास्थ्य को अगर हम लेते हैं तो 5 तत्वों से बना है. क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना शरीर. पृथ्वी, आप, पृथ्वी मीन्स अर्थ प्रोटो एलिमेंट, आप मीन्स वाटर प्रोटो एलिमेंट, अग्नि मीन्स फायर प्रोटो एलिमेंट, वायु मीन्स एयर प्रोटो एलिमेंट, एंड आकाश मीन्स स्पेस प्रोटो एलिमेंट. For example, the hardness of bones is due to Prithvi Mahabhuta predominance. The uncontinuous in our body, all fluids is due to Aap Mahabhuta predominance. Aap means Pani. The temperature of one's body and various digestive fluids is due to Agni Mahabhuta predominance. And various movements of enzymes
to target cells, bodily movements are due to Vayu Mahabhuta predominance. And the hollowness of different organs like lungs, heart, etc. is due to Akash Mahabhuta predominance. So our body is also made of Panchabhuta, and Panchabhut से पूरा ब्रह्मांड बना है. तो जब राम और रावण का अपराजय युद्ध चल रहा था और उस वक्त राम को लग रहा था कि मैं हार रहा हूं, उन्हें लग रहा था कि उनके सारे मंत्र पूजित बाण निष्फल जा रहे हैं, सारी शक्तियां निष्फल जा रही हैं, जो कि कुछ भी उन्होंने अर्जित किया आज तक. तो सभी लोग उन्हें अलग अलग तरीके से समझाते हैं. वो बहुत निराश हैं. उनके पास उनकी सीता को, जिसकी पृथ्वी मतलब पृथ्वी तत्व जो माता है, उसका अपहरण किया गया है. उनके वायु पुत्र हनुमान उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वायु की चारों गतियां स्तब्ध हैं. सीता की माता धरती जो है वो डरी हुई है, सहमरी हुई है राक्षसों के पैरों तले. और वायु के तत्व अर्थात हमारे सोचने की शक्तियां, मैं यहाँ कहना चाहूंगा. और अगर चारों तरफ ये सब सहमा हुआ है, ये सब रुका हुआ है, और तीसरी बात जो होती है वो होता है जल तत्व. और ये जल तत्व जो है वो हमेशा तरल तत्व जो है, वो जो लोग गलत करते हैं उनके पास तरल तत्व ज्यादा होता है. उसी तरह से जो आकाश तत्व है जो होता है, ऊंचे लोग उसी को अपने साथ लेते हैं जो शक्तिशाली दिखाई पड़ते हैं. और जो अग्नि और वायु, अग्नि तत्व जो होता है वो सब में जिंदा रहता है, जिसे हम आत्मा तक कहते हैं, वो भी एक तरह से अग्नि तत्व है. तो इस जब एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे होते तो हम कमजोर हो जाते हैं. राम भी कमजोर हो गए थे. ईश्वर उनको माना जाता है, उनको विष्णु का अवतार माना जाता है, फिर भी वो कमजोर हो गए थे. तब जामवंत उन्हें समझाते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो. रावण जो इतना शक्तिशाली है, उसने ऐसे ही शक्ति नहीं पाई है. उसने अपने 10 सिरों का अर्पण किया शिव को, और तब शक्ति ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया है, उनकी नाभि में अमृत दिया है. तो तुमने क्या किया है? और तब वहीं वो रेती से, बालू से शिवलिंग खड़ा करते हैं, वहां वो दृढ़ आराधना करते हैं, एक एक करके 108 नील कमलों का जाप करके वो अर्पण करते हैं. लेकिन 108वां नील कमल गायब हो जाता है. शक्ति उनकी परीक्षा लेती है और तब वो शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं. उनकी मां कहती थी कि तुम राजीव लोचन हो, नीले कमल के समान आंखों वाले हो. तब वो अपने ढीले तरकस से एक तीर निकालते हैं. अगर आंखें खोलेंगे तो ध्यान भंग हो जाएगा, अनुष्ठान अपूरा रह जाएगा, और आंखें ना खोलेंगे तो अनुष्ठान अपूरा हो जाएगा. एक तरफ ध्यान भंग होगा, एक तरफ अनुष्ठान अपूरा रह जाएगा, क्योंकि 108वां नील कमल नहीं मिलेगा. तो ऐसी अवस्था में वो क्या करते हैं? वो अपने तरकस से तीर निकालते हैं, अपने दाएं हाथ से अपने बाईं आंख को निकालकर अर्पण करने लगते हैं. तब वही शिव से शक्ति प्रकट होती है और कहती हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन. तो आपके अंदर जब आप कमजोर होते हो, आपको अपने अंदर नई शक्तियों का संचार करना होता है, और ये शक्तियां आपके अंदर ही होती हैं. आपको उसको पहचानना होता है. ये पंच महाभूत जो ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर भी है, और इनको जोड़ने की ताकत आप में है. लेकिन ये तब जुड़ेगा जब आप चाहोगे. और इसलिए मैं ऐसा हमेशा मानता हूं कि अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो इन पंचभूत महाशक्तियां जो हैं ब्रह्मांड में, उनसे जुड़ जाना. इसलिए जब मैं क्रॉस कंट्री करता हूं, जब मैं साइकिलिंग करता हूं, जब मैं स्विमिंग करता हूं, तो मेरे अंदर ये पंचभूत महाशक्तियों से, जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनसे जुड़ जाने का अनुभव आता है. और वो एक आनंद देता है, वो कष्ट नहीं देता, वो एक तारतम्य देता है. ऐसा लगता है जैसे हम उसके साथ बह रहे हो. और that is very, very important when you are doing something unique, if you want to achieve something special. Thank you. It's highly motivational, and I'm sure our audiences definitely has got inspired by the way you, in spite of a major injury, और 2 बार इंजरी हुई आपकी, इवेंट के पहले, इवेंट के वक्त आपकी इंजरी हुई, but I think you had an extremely strong mind. और जो आपने
फिर एक फिलोसॉफिकल वे में, आध्यात्मिक तरह से जो एक एग्जाम्पल्स देके जो आपने ये आपका एक्सपीरियंस बताया, आई एम श्योर इट इज गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. इन फैक्ट, coming to the next question actually, sir, is related to what you have experienced. In fact, आपने जो experience किया, और मुझे मेरे हिसाब से जो आपका एक mind बहुत strong था. In fact, so Buddha, as Buddha has said, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep a mind strong and clear. Now, do you agree? And I'm sure you agreed, because your experience also says that healthy body leads to healthy mind, which will keep a person happy and successful. So, what would you say about this? Swami Vivekananda once said that our countrymen should have the strong nerves. Our countrymen should have actually the nerves of steel, the muscles of iron, and the minds of thunderbolt. If we want to create inspirational history, we need to have an iron will. तो इसीलिए मैंने आयरन मैन के बाद स्वामी विवेकानंद को सामने रख करके, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, केवल 3 महीने की प्रैक्टिस में मैंने आयरन मैन इवेंट पूरा किया था. तो फिनिश करने के बाद मैंने लिखी थी 4 पंक्तियां कि मन के अंदर का एक लोहा गलता. मन के अंदर दीवारें होती है, बहुत सारी दीवारें होती है, हम सोचते हैं ये कर पाए. प्लेसिबो इफेक्ट भी कहते हैं. अगर हम ये सोचना शुरू कर देते सबकॉन्शियस में कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो पूरा ब्रह्मांड ये कोशिश करता है कि आपसे ना हो. जब आप सोचने लगते हैं कि मुझसे होगा ही, और तब पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करने लगता है कि आप इसको पूरा करो. तो उसके मन के अंदर के लोहे को गलाना पड़ता है. जो दरवाजे होते हैं, जो सांखल होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है. तो मन के अंदर का एक लोहा गलता, तब तन के ऊपर एक लोहा ढलता. भीतर बाहर चारों पहर जिसके फौलादी इरादा पलता. गिरता उठता कभी न रुकता, अनवरत है जो चलता रहता. जख्मों को जो हंसकर सहता, प्रेरक इतिहास वही है रचता. जख्मों को जो हंसकर सहता, प्रेरक इतिहास वही है रचता. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो मैं जो कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव स्ट्रॉन्ग नर्व्स, स्ट्रॉन्गर मसल्स, एंड मोर देन ever you have imagined, more than what you have thought of. Your mind is the strongest. But unfortunately, you have to discover, you have to recognize, you have to identify this strongest mind. How? Right. You need to have a support of passionate, brave heart. अगर आप किसी चीज के प्रति पैशनेट नहीं हो, तो आपका वो स्ट्रॉन्ग माइंड तैयार नहीं होगा. इट इज वेरी मच नीडेड दैट आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंड को अगर तैयार करना चाहते हो, तो उसके लिए पैशन तैयार करो, अपने अंदर जज्बा तैयार करो, शिद्दत के साथ. पोट तिळकी ज्याला मराठीत सांगतात की पोट तिळकी पाहिजे तुम्हाला, तरच तुम्ही अचीव करू शकता. आणि हे पोट तिळकी तुमचे हृदयात असते, तुमचे पोटात असते, पण हे तुमच्या डोक्यात शिरतात. त्यामुळे नेहमी सांगत असतो, अल्बर्ट टायबर्डने सांगितलं होता, जर्मन इतिहासकारने लिहिलेला होता, की छत्रपती शिवाजी महाराज जर आमच्या देशाला जन्माला आले असते, तर आम्ही त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचले असतो. मी तरी सांगेन की छत्रपती शिवाजी महाराज डोक्यावर घेऊन नाचण्याची गोष्ट नाही, डोक्यात घालण्याची गोष्ट आहे. आणि मी नेहमी सांगतो, मी काही जे केलेले आहे आतापर्यंत, ते नॉट मी, इट इज द आयरन माइंड, इट इज द आयरन मन. इसीलिए जो मैं पुस्तक लिख रहा हूं, अपना अनुभव चरित्र जो लिख रहा हूं, मैं अपना आत्मचरित्र जो लिख रहा हूं, उस पुस्तक का नाम दिया है आयरन मन, आयरन माइंड. माई माइंड इज ऑफ आयरन, नॉट माई बॉडी. बॉडी follows your mind, and once your body is strong, your mind is again strong, because without if you are not bodily strong, you cannot be healthy, and if you are not healthy, your mind can't be healthy.
So that is very important. You will be always, जो कहते हैं ना आयुर्वेदा में बात पित्त कफ, वो कोई ना कोई चीज आप पे डोमिनेट करेगा और आप चिड़चिड़ाते रहोगे, आप गुस्से में रहोगे, आप अशांत रहोगे. इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए. कार्यांतर ही विश्राम है. आप दिन भर में कभी ना कभी आप रात को कर सकते हैं, रात को कीजिए, सुबह कर सकते हैं, सुबह कीजिए, लेकिन कभी ना कभी व्यायाम जरूर कीजिए. जो लोग ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, वो मुझसे प्रेरणा लीजिए. मैं 24/7 बिजी रहता हूं. मैंने अपना फोन अपने इलाके में सबको बांट दिया है. जो 50 लाख की जनसंख्या है, सबको मेरा नंबर दिया हुआ है, और कभी भी कोई भी मेरे फोन पे मुझे संपर्क करता है. अभी मैंने फोन साइलेंट पे अलग रखा हुआ है, नहीं तो घुंघरू की तरह ये बजता रहता है और मैं उठाता रहता हूँ तब भी. और मैं फील्ड पे काम करता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, समस्याओं का समाधान करता हूँ. इसके बावजूद भी अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं. मराठीत सांगायचं असलं तर मी असा सांगेन की हे तुमचं, जर तुमच्याकडे वेळ नाही तर हा तुमचा वेळ काढूपणा आहे. अगर आपके पास समय नहीं है तो आप समय बर्बाद कर रहे हो. आपके शरीर के लिए आपके पास समय नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, बर्नआउट सिंड्रोम में चले जाओगे. मैनेजमेंट का फंडा भी कहता है कि अगर आपने सही तरीके से अपने कार्य में समय नहीं दिया तो आप बर्नआउट सिंड्रोम में सर्टेन टाइम के बाद चले जाओगे. सो इट इज बेटर to give some time to your body so that your mind should be healthy and you can perform much better अपनी ड्यूटी को. ड्यूटी धर्म जो है ना, जो मैंने बताया कि शरीरम धर्म अर्थात धार्यति इति धर्म, जो हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म है. और ये धर्म, ये कर्तव्य जो है, ये धर्म का मतलब हमारे यहाँ कर्तव्य से है, बिलीफ सिस्टम से नहीं है, रिलीजन से नहीं है. और ये कर्तव्य क्या है? माता का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, अपने ऑफिस का कर्तव्य, मतलब जहां आप काम करते हो उसका कर्तव्य, पड़ोसी का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, राष्ट्र का कर्तव्य, विश्व का कर्तव्य, मानवता का कर्तव्य. और ये एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में नहीं होते हैं अगर आप स्वस्थ हो तो. और अगर आप अस्वस्थ हो तो आपको कन्फ्लिक्ट में दिखाई पड़ेंगे. ऋग्वेद में कहा गया है कि धर्मो यो बाधते धर्मा न सधर्मा कुधर्म तत् अविरोधी यो तु धर्मो सधर्मा मुनि सतम. धर्म जो दूसरे धर्म को बाधित करता है वो धर्म नहीं, कुधर्म है. जो धर्म अविरोधी है वही सच्चा धर्म है, जो धर्म किसी का विरोध नहीं करता, which is not in conflict with anyone. इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने भी बताया सम्यक मार्ग. सम्यक मीन्स इन इक्विलिब्रियम विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट. सो जो अष्टांगिक मार्ग है वो सम्यक है, प्रत्येक चीज सम्यक है, सम्यक आचार से सम्यक समाधि तक. तो ये बात समझने वाली बात है कि हम कन्फ्लिक्ट में कब नहीं रहते हैं? जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है. लेकिन उस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मन का स्ट्रांग होना जरूरी है. तो दोनों एक दूसरे के लिए अनुनाश्रय रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं. और ये धर्म का मतलब है ड्यूटी. और आप अपने सभी कर्तव्यों को तभी पूरा कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो. एक्सीलेंट. तो हमने आपको एक्चुअली पूछा था हेल्दी बॉडी इज इक्विवेलेंट टू हेल्दी माइंड. आपने उसके आगे एक और इक्वल लगा दिया कि यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट आल्सो. तो स्ट्रॉन्ग हार्ट, स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग हेल्थ. Passionate heart. Passionate Yes, heart. passionate heart. So this is something which again, like I always feel, that you inspire because there are so many new things to learn from you. In fact, again, I would like to, in fact, wish you all the very best for your upcoming book. I'm sure it's going to inspire a lot of people. In fact, और दूसरी एक चीज है कि आपकी मराठी बहुत प्यारी है. बड़ी प्यारी मराठी है एक्चुअली. तो इनफैक्ट आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्पीकिंग इन मराठी जब महाराष्ट्र में है, they would love to listen to you more in Marathi. In fact, बड़ी प्यारी मराठी बोलते हो आप. So coming again sir to one more question which again आपने actually काफी questions के जवाब ये जो आपने अभी ये दिया था, आपने जो पूरा ये किया उसमें है ना, आपने दे दिया है. बट एक चीज है, जैसे प्रॉब्लम यह है कि we come across lot of we are in the business of managing wealth. So we come across lot of wealthy people, but unfortunately sir problem यह है कि wealth है
मगर उनको जब भी पूछो कि आप व्हाई डोंट यू डू समथिंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, हेल्दी पर्सन, इन फैक्ट दे टेल वी डोंट हैव टाइम, इन फैक्ट हमारे पास टाइम नहीं है. एंड आई थिंक व्हाट बेटर पर्सन टू आस्क देन यू, who I'm very sure is more preoccupied with lot of other people, and who's more accessible as an officer than most of the other people, and yet you remove time for your fitness regime. In fact, आप आपका फिटनेस बरकरार रखते हो. ये इसका राज क्या है एक्चुअली? व्हाट वुड यू लाइक टू टेल पीपल? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सुबह मैं जल्दी निकल जाता हूँ, रात को लेट आता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है, कब करूंगा एक्सरसाइज? ठीक है, तो ये एक है ना टिपिकल आंसर आई हैव कम अक्रॉस लॉट ऑफ पीपल. तो इसका आप है ना, आप आपके एक्सपीरियंस से आप व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द ऑडियंस? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा उन सब लोगों को जो वेल्दी हैं, सो कॉल्ड वेल्दी हैं, लेकिन हेल्दी नहीं हैं, कि इट इज टाइम टू have it is time to care about your health, because wealth is one asset and health is another asset. Wealth, even after retirement, no one asks about your wealth. They ask about how is your health and how are your children, what are they doing. So it is, wealth can be a support system, but wealth cannot be inbuilt. Your health is inbuilt. So first is health and then comes wealth, because if you are not healthy, who is going to enjoy that, the wealth which you are creating? And why you are creating? देखिए, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, अपरिग्रह या दान का वहां पर प्रावधान है, बिकॉज दे वांट टू सर्कुलेट द मनी. Money is created by us. It is artificial. The real is your body. So you have to believe on the real things. Many a times people believe on the real things or the hypothetical things. But real is your body. If your body is not good in a hypothetical thing, if whatever you achieve, it is not going to be long lasting, and it will not help you when the time comes. One thing. The second thing, कि मेरे पास समय नहीं है. तो भाई, किसी के पास 24 घंटे के बाद 1 सेकंड भी नहीं है. महानतम लोगों को भी, मतलब जो धर्म सम्मेलन में 1893 में गए थे, इंडिया से 2 लोग गए थे. दोनों 36 और 37 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया. स्वामी विवेकानंद और दूसरे थे गुजरात से, जैन धर्म के लिए. पर दोनों का निधन हो गया, ठीक है, बहुत कम उम्र में, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया उतने ही समय में, उतने ही 24 घंटों में. तो ये कहना कि हमारे पास समय नहीं है व्यायाम करने के लिए, ये आपका लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए. सेडेंटरी लाइफस्टाइल can always give you lot of ailments which you can realize later on, but your money cannot help you out even if you buy the medicine of the best places of the world, okay, and best medicines of the world. That cannot help. So it is again very important to understand that इसको आप, मैंने ये कहा ना, आपने लिखा remove time. No, I never remove time. Time is there. You have to utilize that. अगर आप अपने घर के, अगर आप 12वें माले पर रहते, मैं 13वें माले पर रहता हूं अभी, क्योंकि हमारा बंगलो बना नहीं है, तो मैं किराए पर एक फ्लैट लेकर 13वें माले पे रहता हूं. मैं जब भी आता हूं, मैं लिफ्ट से नहीं आता, मैं सीढ़ियों से चढ़ता हूं 13वें माले तक. तो वहां आपका एक्सरसाइज हो गया. So you have to include the exercises in your lifestyle. Whenever you are coming back, however you are tired, you should come by stairs. 13वां, 15वां, 17वां माला धीरे धीरे आओ, but that will give you some exercise. When you
you are in your office, so roam around your office. Don't be sitting at one place. Roam around your office. Take some steps out. See, इससे आपकी ऑफिस भी अलर्ट रहेगी कि बॉस जो है इधर घूमता है, उधर जाता है, इधर जाता है, इधर देखता है, उधर देखता है, हमसे इधर जाकर बातें करता है, चलते हुए बात करता है, ये करता है. सो ये जो लाइफस्टाइल में आप ले आओ भाई व्यायाम, और व्यायाम एक्स्ट्रा करने के लिए भी समय निकल सकता है. आप जब भी आते हो एक 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे. नहीं कहते थे कि अगर मैनुअल वर्क नहीं किया, अगर मैंने 20 किलोमीटर वॉक नहीं किया दिन में, तो खाना पाप है. भोजन करना पाप है. इट इज अ सिन टू हैव समथिंग इफ आई हैव नॉट वर्क आउट समथिंग, सम फिजिकल वर्क, सम मैनुअल वर्क. So it is very important कि manual work, because we are made for that. हम रूप में मैनुअल वर्क करने के लिए बने हुए हैं. सो इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, आपको पता है कि हमारा शरीर जो है, हमारा जो ग्लूट्स है, वो किसी भी और जानवर से बेहतर है, क्योंकि हम 2 पांवों पर चलते हैं, और इसलिए हम दौड़ सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम सीढ़ियों पर 2 पैरों के सहारे ऊपर जा सकते हैं. और जो अगली बात है कि हमारे यहाँ नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि हमें पसीना आता है, बाकी जानवरों को पसीना नहीं आता है. ठीक है. सो यू हैव टू नो दैट कि हमारे पास नेचुरली कुछ चीजें बनी हुई हैं, और अगर हम उन नेचुरल चीजों को नहीं करेंगे तो नेचर तो जस्टिस देने वाला है, और वो जस्टिस देगा कि आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपके शरीर में कई सारे एलिमेंट, कई सारी बीमारियां घर कर जाएंगी, और घर कर गई तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है. दवाइयों से तो बिल्कुल मुश्किल है. सर एक्चुअली हाँ जी सर, सॉरी. तो समय रहते सचेत हो जाइए. आपके पास समय है, और आप ज्यादा समय तक मतलब आपकी इच्छा क्या है कि आप दीर्घायुष्य हो, और दीर्घायुष्य होना तो मैंने शुरू में ही बताया, उसके लिए सभी का यूनिजन में होना, एकात्म में होना बहुत जरूरी है. और उसके एकात्म में तभी हो सकता है जब आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं. जी, नेक्स्ट. So the important thing what we got from here is कि जो ये सेडेंटरी अपन लाइफस्टाइल बोलते हैं इज ऑन टू अस. ऑफिस में भी बैठ के आप पैदल चल सकते हो, जैसे आप 13 माह चल के आते हो, तो आप लाइफस्टाइल चेंज भी कर सकते हो ओवर द कोर्स ऑफ योर वर्क. You don't have to remove time only for your fitness regime, but you can make your complete 24 hours into a fitness regime by doing physical work than using artificial means of transport or of the machines. Instead of that, you can very well incorporate that in your lifestyle also. In fact, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में ऊपर जाना बड़ा कठिन होता है, और नीचे आना बहुत फास्ट हो सकता है. इसलिए जब भी ऊपर चढ़िए, सीढ़ियों से चढ़िए, you use steps. नीचे उतरना हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा सर, we would like to congratulate you that आपको I think January में you became the world record holder, in fact, for for becoming the world record holder, in fact, for being the first Indian government servant, civil servant, and uniformed service officer to complete the Ironman in 2017. In fact, so one is, how do you feel? Congratulations to you for that, for becoming the World Book of Record holder. And second thing is, what advice would you give our audience? देखिए, ये फुकट का माल है. It is byproduct. If you are passionate of doing anything, आ गई है मिल करके. So मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई रिकॉर्ड बना रहा हूँ. I was passionate about the things. I thought I should do it. I did it. It is actually it was Birappan's encounter story, which was written by K. Vijay Kumar and was released. He released this book, The Chase of Brigand, Birappan, in CCI Club, where I was also invited, and he divulged a great secret that when Virappan's autopsy was done, postmortem was done, his internal body part were as healthy as 22 years old.
and he could encounter him only because he was equally healthy, he was equally agile, he was equally great marksman, he was a great shooter. So the K. Vijay Kumar, he is now the advisor to Kashmir government, security advisor to Kashmir government, actually, after retirement. So he kept himself fit, and that's why he can encounter the Virappan who made everyone, right from SITs to forces of 3 states, forest and police forces of 3 states, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka, run for their money. But and he killed many of them. But he could be encountered by K. Vijay Kumar, and I made him as role model, and I started practicing for Ironman. I got myself registered for Ironman. Many persons suggested that if you want to do Ironman, you should take at least 2 years to do that. First do the Olympic distance, then do half, then do full. मैंने बोला why half full, why half Ironman? I will do full Ironman. And I did that, and I inadvertently made a record. And after that, I again made a record of becoming Ultraman, which they are going to give me certificate after the COVID, because they want to organize function. And I did raw race across West America to become first Indian, and they are going to give that records certificate also. After entering it into the book, they have already conveyed it to me. So that came to me as a surprise, but as a pleasant surprise, of course. मैं ये कहना चाहूँगा कि rewards के लिए नहीं, हमें अपने लिए, you should be self motivated. रिवॉर्ड्स तो मिलते रहते हैं, सही काम करने वाले को रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं, और कोई रिवॉर्ड मिले ना मिले, मैं हमेशा कहता हूँ सच्चे चित्त का आनंद तो मिलता ही रहेगा, सच्चे चित्त से किए हुए कार्य का आनंद, जिसे भारतीय संस्कृति में सच्चिदानंद कहते हैं. सच्चिदानंद मतलब गीता में भी कहा गया सच्चिदानंद विग्रह. ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद विग्रह ही है. सच्चे चित्त के आनंद ही ईश्वर है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं. और सच्चे चित्त का आनंद कब होता है? जब आप ट्रू हार्टेडली किसी काम को करते हो. सो यू do your workouts, your physical strengthening, your physical endurance things with pure heart, with full potentials, and you will find that you are doing something great. You know, in 2017, I ran 42 kilometers in 4:54 hours. In 2018, I ran 42 kilometers with braces on in 4 hours 27 minutes. In 2018, in 2019, I ran 42 kilometers in 3 hours 47 minutes. And in 2020, I ran 42 kilometers in 3 hours 19 minutes and became a podium finisher in my age category in Tata Mumbai Marathon. So this can be transformation. Once you have passionately decided to do so. I have never thought of becoming a podium finisher, but I became podium finisher. So it is not needed that you should think of becoming a podium finisher or creating a record. So मैंने कोई अजूबा रिकॉर्ड नहीं बनाया कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जो दूसरे लोग करते हैं वो किया और पहला हो गया. दिस इज सरप्राइजिंग कि पहला हो गया. मैंने सोचा उस बारे में, जिस अधिकारी उसके पहले तक सोचे नहीं थे, और उसके बाद दे आल्सो थॉट ऑफ. Right. So I think, you know, one thing what I can understand from what your experiences or how यह है कि work towards your goal. I think rewards as a byproduct. जो reward आएगा वो तो ठीक है, वो byproduct है, but you know you need to work towards your goals. I think that is more important than the reward itself. In fact, yes. So I think, you know, it was a really wonderful session, sir. And you know, I'm sure through your talks you have inspired so many people. In fact, I would just like to thank you to take out time. And I'm sure, you know, and keep inspiring people with your acts, with your duties. And yes, sir.
आप मेरी एक कविता हमारे लोगों के लिए नहीं सुनना चाहेंगे? हमारे सारे लोगों के लिए बिल्कुल सर, बिल्कुल। कविता सुनाना चाहता हूँ अपने लोगों को कि आप सब आम होकर भी खास हैं, आप खास होकर भी नए खासियत तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कविता लिखी है, हम निःशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं, जहां घोर निराशा है वहीं विश्वास रचते हैं, अंत जहां होता वहीं से नई शुरुआत रचते हैं, धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं, हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं। उड़ने की ताकत परवाज का मतलब होता है। हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं, गर्दिश में रहकर भी हम सच्चे ख्वाब रचते हैं। मतलब इन बैड कंडीशन ऑल्सो ऑलवेज थिंक ऑफ डूइंग बिग, जो जैसा कि इन्होंने कहा था, मतलब अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, कि हैविंग नथिंग इज नॉट अ सिन बट having low aim is a sin, is a crime. So इसलिए मैं कह रहा था कि हम निःशब्द रहकर भी संवाद रचते हैं, जहां घोर निराशा है वहीं विश्वास रचते हैं, अंत जहां होता वहीं नई शुरुआत रचते हैं, धरती की मिट्टी से अनंत आकाश रचते हैं, हौसलों के दम पर नए परवाज रचते हैं, गर्दिश में रहकर भी हम सच्चे ख्वाब रचते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अंधेरे में आफताब रचते हैं, हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं, हर शाम ढलने पर नया प्रभात रचते हैं, हम आम होकर भी कुछ खास रचते हैं, हर कदम पर हम नया इतिहास रचते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आई थिंक क्लोजिंग, आपके जो क्लोजिंग कमेंट्स थे, इनफैक्ट आपकी सिर्फ एक फिटनेस के अलावा जो एक दूसरी आध्यात्मिका, जो आपका एक जो इतना फिलोसफिकल अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ एंड योर इंटरेस्ट इन फिलोसफी, I'm sure is going to be guiding force to so many people. In fact, thank you very much, sir. In fact, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपके लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि मुझे पता है कि हमको आपसे ज्यादा सुनना था, हमको आपको पूछना नहीं था. In fact, because there are so many wonderful experiences you have to share. And मेरे हिसाब से ये 40-45 मिनट is a very short time for someone like you, where you have such a vast experience and the track record which is there. But see, citing that you are so tight on your schedule, and you could take out some time for this audience, and I'm sure it was a very extremely inspirational session. I would just tell Harmeet to give the closing remarks, and Jai Hind sir, and stay healthy, keep inspiring. Thanks a lot, sir. Harmeet. Yes, sir. Sir, this was a very inspiring session, sir. आज आपने जो भी बोला यहाँ पे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसने कई लोगों को प्रेरित किया है कि वो फिटनेस या तो शुरू करें, और जिन्होंने रोक रखी है वो दोबारा उसे शुरू कर सके। सर, सेड्रिस वेल्थ पार्टनर्स की तरफ से सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद सेड्रिस नॉलेज सीरीज को अटेंड किया और इसकी गरिमा बढ़ाई। Big thank you to all our viewers for showing up in large numbers and continually supporting us and participating in every show. We will be back next month with a new topic and a new speaker. Until then, stay healthy, stay safe, and Jai Hind. So I'll tell you one more thing, sir. I think Harmeet is going to be the first person who's going to wear his shoes and start running from tomorrow. Yes, Harmeet? Absolutely, sir. Absolutely. Congratulations, Harmeet. For the new resolution. So he's a young lad, and I'm sure he and my whole team is extremely young team in Cedris. I'm the oldest, I'm the youngest person in our office on fitness, in fact. But I'm sure you have inspired so many of them, and they all are going to definitely put on their shoes and going to start running or do some fitness activity from tomorrow itself. Thank you very much, sir, and thank you for removing time, sir. Subhash Shikram. Chaliye, Jai. Yeah. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind, sir. So how was it? Good?